So let me explain. If somebody asks from you that what do you mean by object file in C, then what you reply? So the file which is being composed after compiling a particular file, after compiling a C file, is called a object file in C. In C. Its extension is Can, .obj. okay, very good. But can we say that this object file is also a high level? This object file has the instructions that is based on high level? No, sir. No, No, then, sir. No, sir. then we know that Sir, Attached with machine language. we know that our source file that having the extension .c, okay, is a high level. Okay, and similarly, can we say that that object file also having the code related with high level? Sir, the code is related to the source code which we have written, but the language will be assembly language, sir. It will Assembly not be language. high level language. Okay, okay. The language that is associated with the object code or object instructions is the assembly language, is the low level language. Obviously, it is true. Okay. Then what is the basic difference between object file and .exe file? The .obj file is all the codes are written in assembly language, sir, while .exe file is executable file, sir, which is given to the OS, sir, whenever we run a program. Wait. And we know that our operating system is ready to understand the assembly code. Okay. And our operating system can directly access the assembly code or low level code. So why exe is required in place of .obj? Because .obj is also an assembly code. Sir, in .exe files, sir, there are some machine instructions included, sir. Very good, very good. There are some machine instructions are included there. Okay. And machine instructions that may be related with the input, output, or some other resources. Sir, but why these machine instructions are included in that exe file? Because instruction is nothing but a kind of request. When you write some instruction in high level, this is nothing but it is a request. So your request is converted into first assembly language, and then after, to use the hardware resources, it required the instruction that will use that hardware, that particular hardware. So these are the included by the compiler. Okay, that is called machine instruction. The instruction which is related with the hardware resources. That is called machine instructions. Okay. Okay. Hello, sir. हाँ बोलिए कौन? Sir, yes, Shankar. शंकर, हाँ बोलो. Sir, how can we convert any program into any application? Any program into any applications? Yes, sir. Yes. In typical or traditional C, it is simply called collection. Okay. If you put all the programs which is related with the application or related with the software in one directory, okay, and this directory is called as the application. ठीक है, यानी अगर आप सी में कुछ भी बनाते हैं और उसको एक डायरेक्टरी में स्टोर करके रख देते हैं और कहते हैं कि ये डायरेक्टरी लीजिए आपका काम हो गया, तो वही एप्लीकेशन कहा जाता है. क्योंकि सी में, ट्रेडिशनल सी में, टर्बो सी में हमारे पास एप्लीकेशन को डायरेक्ट बनाने का कोई तरीका नहीं है. जैसे आप समझ रहे हैं एप्लीकेशन का मतलब सेटअप फाइल हो, हम चलाएं, वो इंस्टॉल हो जाए, ऐसा आप जानना चाह रहे हैं ना? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा कुछ उसमें नहीं होता है. ठीक है, आप सिंपली ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जितने अपने प्रोग्राम जो वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे उनका हम EXE बना लेंगे और वो EXE डायरेक्टरी में स्टोर करके हम पर्टिकुलर कंपनीज ऑफ पार्टी को दे देंगे कि भैया ये लो, ठीक है, तुम इस फाइल को रन कराओगे, तुम्हारा जो है वर्क है वो पूरा होगा. ठीक है, वो फाइल खोल के भी देखेगा, देख सकता है, लेकिन वो EXE फाइल होगा, इसलिए उसके कोड को वो समझ
नहीं पर नहीं पाएगा। तो एक ये व्यवस्था है, सेटअप की व्यवस्था इसमें नहीं है। हाँ, अब विजुअल सी प्लस प्लस अगर आप पढ़िएगा तो विजुअल सी प्लस प्लस वगैरह में सेटअप की व्यवस्था है। डेव सी में मैं पूरा देखा नहीं हूँ, हो सकता है डेव सी में भी ये व्यवस्था दिया हो। ठीक है, वो चेक करने का चीज है। बट ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल सी है उसके मुताबिक अगर चले तो एप्लीकेशन का मतलब वहाँ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। so how can a calculator formed by a C program language, हाउ, a calculator formed by C programming language? नहीं, you can just make your calculator in C programming by using GUI instructions. ठीक है, it can't Yes, be sir. GUI. If you want to do in GUI, then first you have to create the GUI components in C by using window.h header file or by using graphics.h header file. Yes, sir. ओके, अब वो भी आपको ये देखना होगा कि आप जिस टर्बो के वर्जन में काम कर रहे हैं वो उसके साथ सपोर्टेड है कि नहीं। आप जिस डेव में काम कर रहे हैं वो डेव window.h को सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि वो करेगा तभी आप कुछ विंडो बेस्ड कोई आप ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ अ लाइन, यू कैन मैनेज योर माउस, यू कैन ड्रॉ अ सर्किल, यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल, यू कैन ड्रॉ अ स्क्वायर। ठीक है, तो तब आप कर सकते हैं। ठीक है, Yes, और sir. आप एक ड्रॉ स्क्वायर करेंगे और चाहेंगे कि एंट्री मेरा उस स्क्वायर के अंदर हो, तो उसके लिए स्क्रीन कोऑर्डिनेशन आपको कोऑर्डिनेट फिक्स करना होगा कि आपका जो स्क्वायर है इनपुट वही स्क्वायर के अंदर में ले, ताकि एक GUI की तरह लुक आए। आपको इतनी मेहनत सी में करनी पड़ेगी जो कि GUI एप्लीकेशन जैसे विजुअल बेसिक या जावा या और भी जो दूसरे जो विंडो प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है उनमें काम करेंगे तो ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, Sir, हाँ बोलिए। sir, basically you want to say that it is not efficient to use the concept of GUI in C because it will be tedious. हाँ, obviously it will be tedious and complex too, Other programs are like because Java or C is a CUI language, it is not a GUI language. ठीक है, but C provides the instructions, ठीक है, regarding the library package like window.h that you can create the window components. After creating the window components, you can use, ठीक है, your GUI interface in C language. मैं जो Yes, बोल sir. रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? Yes, क्रिएटेड sir. नहीं है, GUI करके कुछ भी नहीं है सी में। लेकिन सी ये भी नहीं कह रहा है कि आप GUI जैसा कुछ कर भी, GUI थोड़ी ऊपर से टपक के आया। GUI क्या है, एक आइकनिक है, ग्राफिक्स है, वो तो आप डिजाइन कर ही सकते हैं। तो सी कहता है मैं ग्राफिक्स को सपोर्ट तो कर दूंगा, लेकिन आपको जो टेक्स्ट बॉक्स आप यूज करते हैं, जो चेक बॉक्स यूज करते हैं, जिन्हें आप विंडो कंपोनेंट्स कहते हैं, उन्हें आपको पहले सी में बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बनाने का झंझट तो आपके पास सी में लोड जो है वो बढ़ जाता है ना। ठीक है, जब भी विंडो के अलावा आपको कभी भी रिवोल्यूशन की जरूरत होगी कि नहीं मैं एक डिफरेंट विंडो प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं, ठीक है, ओके, तो आपको हमेशा उस केस में किसकी जरूरत पड़ेगी, सी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक डिफरेंट चेकबॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक डिफरेंट रेडियो बटन क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल देना चाहते हैं, तो वहां आपको सी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? Sir. Yes, sir. Yes. एनी मोर क्वेश्चन शंकर? No, sir. एक वेट, okay, so let's come to the next question, and the question is that what is the difference between printf and scanf return value? Because we know that both functions return an integer value.
This is very simple question. I'm asking. Sir, what is the difference between printf and scanf? Return value, not Return value. printf and scanf. The difference between printf return value and scanf return value. Sir, Ah, in printf, sir, ah. whenever we want to get the return value, we have to use a receiver. Then what is the meaning of return value with printf? It means, sir, that the format specifiers which we are using inside printf, sir, No. the values which we are going to No, print, no, sir, no. of the variable. I have told you everything. And we know that printf returns an integer value, which is the length of the message that is written inside the printf function. Okay. And we know scanf is also written an integer value, which is a number of parameters or number of specifier written inside the scanf function. So that is the basic difference. One is return an integer value, which is related with the length of the message, and another return the integer value, which is related with the number of parameters or number of specifier. Sir, Hmm. so what will be the return value if we are printing a variable's value using printf? So variable is also a message. If you want to display your variable like x and x having a number like 128, then it means it consists 3 characters, 128. So it will return 3. Okay, sir. Okay. If you write Ravi inside the printf function, then it will return 4. If you write %dx and x having the value 128, then it will return 3, because 128 having 3 bytes, 3 characters. Okay. Yes, sir. Okay. प्रिंटफ में आप कुछ भी करते हैं, जब वो रिजल्ट बनाता है तो वो रिजल्ट कैरेक्टर के फॉर्म में होता है. यानी आप %d लिख के x लिख देते हैं, जब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है तो वो किस फॉर्म में रखता है उसको? कैरेक्टर के फॉर्म में. क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, let's come to the next question. And the next question is, what is the importance of preprocessor or pre-compiler? You know, Sir. when we write the header file, at the time of writing the header file, we write hash include. Yes, sir. You know, and we know Sir. hash include is nothing but a preprocessor. Preprocessor directory. Processor. Exactly, Processor. what is the role of the preprocessor? So basically Sir, it works. Go. Komal. Sir, when we are using a predefined function, then by the help of the stdio.h, and that helps for the our function to for the executing. When it will be invoked, because its name is pre-compiler, so obviously, okay, when our C compiler is going to compile our program, okay, so it will execute before C compiler, because its name is a pre-compiler. It means Yes, sir. Yes, sir. it will work before compiling our program. Yes or no? Yes, क्या sir. ये मेरे Yes, sir. प्रोग्राम Yes, के sir. कंपाइल होने के पहले काम करेगा कि बाद में काम करेगा? सर पहले वर्क करेगा सर. पहले काम करेगा, क्योंकि प्री कंपाइलर है.
क्योंकि जो फंक्शंस Yes, हम sir. अपने प्रोग्राम में यूज किए हैं, ठीक है, द लाइब्रेरी फंक्शन दोज आर यूज विद इन प्रोग्राम हुज इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द हेडर फाइल, ठीक है, और जब तक वो इंस्ट्रक्शंस मेरे कोड के साथ ऐड नहीं होगा तब तक पूरे प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं बनेगा। No, Sir, sir. basically, answer, sir. So basically, preprocessor compiles the functions, sir, which are defined under the specific header file, and just aware the compiler about those functions which we are going to use in our source code, sir, inside void main, sir. So actually, it is just pre-compiling things, pre-compiling the user defined the predefined functions, sir. So it means it can't add the instructions of header file within your source code. It is not Yes, sir, added. it will definitely add, sir. It will definitely add, and that's why when you compile, you write a program that having 10 lines, okay, and after compiling it will show 118 lines. करता है ना, आप बनाते हैं 10 लाइन का प्रोग्राम, कंपाइल करते हैं तो दिखाता है 118 लाइन कंपाइल किया, 200 लाइन कंपाइल किया, दिखाता है ना, तो वो कहाँ से ऐड हो जाता है, वो सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ से लाता है, हेडर फाइल से। Okay, let's come to the Excuse me, sir. हाँ, How जितना भी हम लोग लाइन कंपाइल किया वो हम लोग का हेडर फाइल से हम लोग का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था सर, वो वर्क बिल्कुल। कैसे करता होगा सर? कौन वर्क कर इससे करता होगा सर जो हम लोग का इंफॉर्मेशन लाया सर वो हुआ कैसे सर? नहीं, देखो करता क्या है ना कि प्री कंपाइलर क्या करता है कि सिंपली कॉपी करता है जो इंस्ट्रक्शंस, जो लाइब्रेरी फंक्शंस आप यूज किए होते हो, एक्चुअली काम तो आपका कंपाइलर ही करता है, लेकिन Yes, sir. आप चूंकि अपने सोर्स कोड में लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज किए हो तो उसका भी तो वो भी तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, आपके हेडर फाइल में, हेडर फाइल्स में, और वो भी ऑब्वियसली हाई लेवल में। किस लेवल में है? हाई लेवल लेवल लैंग्वेज में। में। अब हेडर फाइल खोल के देखोगे आप, ऐसा नहीं है, समझ सकते हो, कुछ कोड आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन लिखा इंग्लिश में ही रहता है, उसको ले आके आपके इंस्ट्रक्शन के साथ ऐड कर देता है, और ऐड करने के बाद जब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, ठीक है, तब उसका ऑब्जेक्ट फाइल वो क्रिएट करता है। क्लियर? तब क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट फाइल, यानी आपके सोर्स कोड का प्लस हेडर फाइल के सोर्स कोड दोनों ऐड होके तब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है। यस सर। ठीक है। So how can we see the header files? Easily you can see, open stdio.h header file in your turbo C ID. आप जहाँ पे लोकेशन है आप देख लीजिए कहाँ पे है, वहाँ पे आप टर्बो सी में खोल लीजिए, नोटपैड में खोल लीजिए, कहीं पे भी खोल के उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर हिडन है तो उसको पहले आपको विजिबल करना होगा। हिडन कैसे होता है? व्यू में जाके होता है ना, शो हिडन डायरेक्टरीज या हिडन फाइल्स लिखा रहता है ना, उसको इनेबल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा वैसे। सर, we will have C++ in our third year. So will we use the same Turbo C3 as our IDE, or we can switch? Obvious, no. You can use Turbo C3 for C as well as you can use it for C++. But apart from that, if you want to use like another IDE, sir, I am interested to work in code block, I am interested to work with Dev C++, you can go through. And sir, in the beginning also you advised that we can work on different IDs, but we will start with Turbo C3. At the very beginning you said that. Because it's giving the original touch. Yes and sir, that's yes why sir. I am saying, ठीक है, बट मैं किसी को बाउंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी आईडी का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, क्योंकि कोड नेवर चेंज, कोड तो कहीं नहीं बदलेगा, ठीक है। वो टर्बो में लिखना होगा, वही डेव में लिखना होगा, वही कहीं और भी लिखना होगा, वो कोड में चेंजिंग नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा कि एक ओरिजिनल लुक मैं शुरू से करता आया हूँ,
और दैट्स वाई मुझे ओरिजिनल जैसा फील होता है टर्बो के साथ, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। बट मैं आपको रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ और कभी नहीं करूंगा। आप किसी भी No, sir. दूसरे आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं C++ के लिए। We also like Turbo C3, sir. I personally also like Turbo C3. ठीक है, okay, so Excuse me, sir. let's move to the next question, and the question is that what is the difference between operator and statement, predefined operator and predefined statements? Like, you know very well that there is an operator named ternary operator, that is also called conditional operator. Conditional operator. Yes. And you know Yes, very sir. well that there is another statement that is a predefined, that is a sorry pre-declared but defined by you, and that is called if else. So technically both having same work. Yes, sir. Ternary operator, we can also use it for taking Check decision, condition. as well as if else we can also use it for taking decision on the basis of a condition. तो अंतर क्या है? Which one is Sir. better? सर एक कोड And which Actually, one is yeah. sir, हम if else लिखते हैं, जब हम if else लिखते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारा कोड लिखना होता है, और जब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो कोड वहां भी रिड्यूस कोड लिखना होता है, वहां भी कोड लिखना होता है है। सर, लेकिन वो वहाँ पे कम कोड में हो जाता है काम सर, अच्छा। मतलब उतना नहीं लिखना पड़ता। अच्छा, sir, now can I answer? हाँ बोलिए। Sir, ternary operator basically returns a value, sir. We use a receiver in ternary operator, and ternary operator is only used It is- whenever we want to take a decision on one line statement, sir. Always it is not required to take a receiver using ternary operator, ठीक है? आप विदाउट रिसीवर के भी यूज कर सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है। You can use the ternary operator without receiver. Yes, sir. So in a Sir, you are ternary, asking difference between ternary operator and if else. Yeah. First ternary operator. No, I'm just asking about the not ternary operator if else. I'm asking what is the difference between predefined operator and predefined statement. Ternary operator is a predefined operator, whereas if else a predefined statement. if else हम नहीं बनाते हैं, तो बना हुआ है ना। yes sir. if else को हम लोग ऑपरेटर नहीं ना बोलते हैं, कि स्टेटमेंट बोलते हैं। No, sir. स्टेटमेंट Yes. बोलते हैं ना, ब्लॉक स्टेटमेंट बोलते हैं या स्टेटमेंट बोलते हैं। तो क्या अंतर है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बताया हुआ है, ठीक है। देखिए इसका लोडिंग, द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड स्टेटमेंट, प्रीडिफाइंड ऑपरेटर एंड प्रीडिफाइंड स्टेटमेंट, ठीक है, इज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। वी कैन एक्सट्रैक्ट बाय टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है, सॉरी, जब आप प्रोग्राम को रन कराने जाते हैं, तो आपका जो ऑपरेटर होते हैं, जितने भी प्री डिफाइंड ऑपरेटर होते हैं, जैसे ही आप सी ओपन करते हैं, वो मेमोरी में अवेलेबल हो जाते हैं, वो स्टे रहते हैं मेमोरी में। तब तक स्टे करते हैं जब तक आप सी को क्लोज ना कर दें। किसको क्लोज ना कर दें? सी को। नो मैटर कि आप सी को ओपन करने के बाद एक प्रोग्राम का काम कर रहे हैं या 100 प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, वो ऑपरेटर आपके मेमोरी में बैठा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटर प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो रन टाइम पे ये वहां से डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रैम में वो क्या है, अवेलेबल है। रैम में ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक्सेस हो गया। लेकिन जितने भी प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स है, ये कंपाइल के समय मेमोरी में नहीं होते, ये कंपाइल के समय मेमोरी में
नहीं होते। एग्जीक्यूशन के समय जब कंपाइलर इसको इन्वोक करता है, स्टेटमेंट को इन्वोक करता है, तब ये स्टेटमेंट अपने लिए मेमोरी, रैम मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं, अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, एंड देन आफ्टर मेमोरी को रिलीज करके वापस आ जाते हैं। एक मेमोरी में है, डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, ठीक है, और दूसरा मेमोरी में नहीं है, जब इन्वोक हो रहा है तब मेमोरी बना रहा है, वर्क कर रहा है, मेमोरी रिलीज कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑपरेटर इज फास्टर देन द स्टेटमेंट। ऑपरेटर इज फास्टर देन द स्टेटमेंट। बट दुनिया के सारे कामों के लिए, सारे चीजों के लिए हम सब चीज के लिए ऑपरेटर बना के रख दे, ये भी सही नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, जिसकी जरूरत है वो और जिसकी जरूरत नहीं है वो सब उठ के रैम मेमोरी में बढ़ जाएगा। तो एक तो साइज बड़ा हो जाएगा, दूसरा चीज उसके अनुसार हमें रैम की कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करना होगा, तीसरा चीज है कि जरूरत 10 का है, झूठ मूठ का 200 बैठा होगा, 190 की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटर उन्हीं चीजों का बनाया गया जो एसेंशियली सब जगह जरूरत है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर हर जगह जरूरत पड़ सकती है, टर्नरी ऑपरेटर इसकी भी जरूरत सारे एप्लीकेशन में पड़ सकती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ऑपरेटर्स बना के दे दिए गए। लेकिन जहां पे लगा कि नहीं, इन ऑपरेटर से काम नहीं बनेगा और लोग अपने अनुसार चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, यानी इससे काम नहीं बन पाएगा, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग वहां पे स्टेटमेंट भी रख दिया गया। जैसे टर्नरी में बताया गया कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट होल्ड करता है, ट्रू कंडीशन होगा तो भी सिंगल लाइन, फॉल्स होगा तो भी सिंगल लाइन, बताए थे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नहीं, Yes, sir. ट्रू होगा तो मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स हो तो भी मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे होगा, टर्नरी से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इफ और एल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इफ एल्स सिंगल लाइन को भी कंटेन करता है और मल्टी लाइन को, Multiple line को ठीक है। अब आप कहिएगा कि ये व्यवस्था आप ऑपरेटर टर्नरी के साथ क्यों नहीं बनाए, जो डेवलपर था वो बना देता टर्नरी के साथ, फिर वही आ जाता, ठीक है। अगर टर्नरी के साथ हम मल्टी लाइन का कंसेप्ट लेके चलते तो फिर तो वो यूज करें या ना यूज करें, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी ब्लॉक करके रख देता रैम में, क्योंकि सी ओपन करेंगे टर्नरी ऑपरेटर आ जाएगा रैम में, चाहे हम इस्तेमाल करें या ना करें। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड प्रीडिफाइंड ऑपरेटर एंड प्रीडिफाइंड स्टेटमेंट, statement. ठीक है। Sir, हाँ, sir, while making a professional software, can you hear me, sir? हाँ, yes, I am here. Sir, so while making a professional software, sir, is the like what are the prerequisites required, sir? How can we make and what are the steps? No, Like if you, right now, if you want to create a professional software, then I will suggest you go with Python, Java, .NET, or some other languages. I will not prefer you the C language. Okay, but if you want to invent some new things, if you want to create some new things, then I will must prefer you to go with the C language or C++ language. Okay, today C and C++ is basically used for R&D, research and development. It is not used for professional softwares. Okay. sir, when Java and Python was not developed, how our like technology world was making software? In that time, it works with the obviously works with the C language. You know, आप रेलवे में रिजर्वेशन कराने जाते हो आज भी, ठीक है, तो वो जो रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका प्लेटफॉर्म यूनिक्स है, लेकिन उसे बनाया सी में गया है, ठीक है, उसे बनाया किस में गया है, सी में भी गया,
ठीक है, अब आप कहोगे कि सी तो डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। मैंने कहा कि सी में डेटाबेस को डेटाबेस से कनेक्ट होने का कोई फीचर नहीं है, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा है कि डेटाबेस से वो कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकता है। वी कैन क्रिएट द ड्राइवर इन सी दैट विल कनेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि हम इंटायर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम डेवलप कर ही सकते हैं सी में, तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए हम ड्राइवर नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? Sir, just like how we develop a तुम्हारा certain पहले program. सॉल्यूशन मिल रहा है कि तुम खाली क्वेश्चन पूछते जा रहे हो बिना? No, sir, I am getting the solution. That's why another question arise from that your answer. ओके, Sir, I forget. Yeah. So, sir, as we create a program in C using the logic behind by analyzing first of all the problem. So, Obviously. like this, sir, if we want to like develop some system software inside C, first of all, we also have to analyze how that particular thing works, and then we have to build the logic. obviously. So, sir, what is device driver, sir? You said right now. Device driver is nothing but suppose I'm using a pen tab here. You know, Yep. Yes, sir. Yes, sir. pen tab for writing some notes on the screen. Okay. Pen tab works with the driver. You know what is the meaning of driver in car? A car Yes, is nothing sir. without a driver. Okay. Yes, sir. A driver will run the car or will stop the car. Similarly, a driver will work the pen tab or stop the pen tab. ठीक है, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के सारे चीजों को नहीं समझ रहा है, नहीं, आप भी सारे चीजों को नहीं समझ रहे हैं। तो चीजों को समझे तो पहले चीजों के बारे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया जाएगा, तब आप चीजों को आगे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये ड्राइवर कुछ नहीं है, ये ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज कराता है कि एक डिवाइस आपके साथ अटैच हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. बस वही रोल है इसका। हाँ, बहुत सारे ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट एसोसिएटेड भी होते हैं, जिसको हम प्लग एंड प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर पेन टैब क्या है? कौन पूछ दिया जी बीच में? Yes, sir. ऋषु कुमार। यस अच्छा, सर। अभी विनायक का पहले क्वेश्चन खत्म होने तो फिर तुम्हारा जवाब देते हैं। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले, यू नो प्लग एंड प्ले? Yes, sir. इफ यू परचेज सम हार्डवेयर, ठीक है, कीबोर्ड आप खरीदते हो, जो सेलर होता है आपको बोलता है ले जाइए, बस प्लग एंड प्ले है, मतलब आप जाइए, कनेक्ट कीजिए, यूज कीजिए। क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता है, ठीक है, कि इसमें विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8 जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉर्मली आज के डेट पे यूज किए जा सकते हैं, उन सब में इसका ड्राइवर बाय डिफॉल्ट है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आप सीधे सिंपली कनेक्ट कीजिए, यूज कीजिए। आप बहुत सारे पेन ड्राइव खरीदते हैं, आप प्लग एंड प्ले होता है, आते हैं, कनेक्ट करते हैं, कुछ तो ऐसे ही डायरेक्ट काम कर जाता है, और कुछ में लिखता है ड्राइवर अपलोडिंग, लिखता है ना, डाउनलोडिंग, सॉरी। कुछ पेन ड्राइव जब आप कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से तो लिखता है ड्राइवर डाउनलोडिंग, और 20-30 सेकंड लेता है, और उसके बाद लिखता है रेडी टू यूज। Am I right or not? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कुछ पेन ड्राइव आपने कनेक्ट किया, काम कर गया। कुछ पेन ड्राइव आपने कनेक्ट किया, लिखता है ड्राइवर डाउनलोडिंग। ठीक है, 10-20 सेकंड वेट करते हैं, फिर वो कनेक्ट होने लगता है, यानी वो वर्केबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इमीडिएट आपने कनेक्ट किया, काम कर गया, इसका मतलब ओएस में वो ड्राइवर पहले से था स्टोर, ओएस उसको सपोर्ट कर रहा था। दूसरा वाला में आपने कनेक्ट किया, ठीक है, ओएस में वो ड्राइवर पहले से नहीं है, लेकिन ओएस उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो तुरंत क्या कर लिया है, ड्राइवर को क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिया। या पेन ड्राइव में ही, ठीक है, जो कंपनी पेन ड्राइव दे रही है उसी में ड्राइवर बाय डिफॉल्ट उसमें करके दे रही है, तो जैसे ही आप कनेक्ट कर रहे हैं, ड्राइवर नहीं है तो वो डाउनलोड कर दे रहा है, आपका पेन ड्राइव काम करने लग रहा है।
मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही है? प्लग एंड प्ले, Yes. ठीक है। लेकिन दुनिया के सारे डिवाइस प्लग एंड प्ले हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है। नहीं है, नहीं, हाँ। ठीक है। अब जैसे हमारे पास बायोस है, तो भगवान हमारा बायोस बना के भेजा, तो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन पार्ट भी बना के भेजा है, इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के इंफॉर्मेशन को भी उसमें फीड करके भेजा। वी आर यू हैविंग 2 हैंड्स, तो हमारे उस बायोस में फीड है 2 हाथ होंगे। अब मेडिकल साइंस इजाद करके एक तीसरा हाथ ऐड कर दे, तो क्या वो बायोस उस तीसरे हाथ को रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं करेगा, नो सर। ठीक है। आप जाते होंगे शहर वगैरह में, घूमते होंगे, तो बहुत सारा आप गाय को देखते होंगे। कुछ गायों में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा पैर लगा के उसको मतलब तय रूप दिया जाता है, लोग देते हैं उसको। तो एक देखते होंगे कि एक्स्ट्रा पैर लगा के दिखाया जाता है कि भाई इसके 5 पैर है, ठीक है। ऐसा आई थिंक किसी ने देखा है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं ही देखा हूँ। मैंने देख, पूजा वाली Yes, गाड़ी sir. में है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कभी आप रियलाइज कीजिएगा कि वो 4 ही पैर एक्टिव होते हैं, वो 5वां पैर एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि गाय गाय भगवान ने जब गाय बनाया तो उसके बायोस में तो 4 ही पैर का इंफॉर्मेशन दिया, वो 5वां कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बायोस खराब भी हो सकता है, कंप्यूटर का भी खराब हो सकता है, हम लोगों का भी खराब हो सकता है, ठीक है। बायोस खराब होता है तो ही आपका वो जैसे एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे अरे पोलियो ड्रॉप, पोलियो हो जाता है, पैरालाइज। पैरालाइज। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपके भगवान ने आपके दोनों हाथों का इंस्ट्रक्शन दिया है, दोनों पैरों का इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन एक हाथ काम कर रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 2 इंस्ट्रक्शन जो है, उस 2 इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शन को कोई ब्रेक कर रहा है, कोई रोक रहा है, जिसकी वजह से वहां से हैंड तक की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। यानी ब्रेन समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो फ्लो है वो जा ही नहीं पा रहा है, दैट्स व्हाई ये वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इलाज होता है तो कुछ सक्सेस भी जो होता हो जाता है, कुछ नहीं भी होता है।